इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड रिस्क एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। In this question, it is given the following data for a bond. Face value is rupees 1000, years to maturity 6 year, YTM 17%, coupon interest rate 16%, redemption value is 1000. So let us show its time scale. So today 0 time period, face value is given. So this is rupees 1000 and life is 6 years and coupon interest rate is 16% and YTM is given 17% and redemption value is 1000. It means YTM and coupon rate they are not same, so price will be different. So current purchase price is missing. So they are asking what is current market price, duration and volatility of this bond. So let us start with first of all determination of current price. Of bonds, which is our P note, and its definition is present value of cash inflows at YTM. So YTM is given, so let us draw table. So life is 6 years are 1 to 6 and 6. तो बताइए कैश इनफ्लो 16% कूपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर साल 160 रुपीज़ और लास्ट में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू एंड अप्लाई पीवी फैक्टर एट 17% विच इज अवर YTM. तो ये आप कैलकुलेट कीजिए फॉर 6 ईयर. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.17, दिस इज 0.39 and annuity factor for 6 year 3.59. So this will be our current price of bond. So 3.59 so times 160 plus 390. So this value is 964.40. So next they are asking what is the duration of bond. तो ड्यूरेशन के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, करंट यील्ड, कूपन यील्ड और टेबलर मेथड. तो लेट अस अप्लाई अवर करंट यील्ड मेथड. पहले इसका फार्मूला स्पेसिफाई कर सकते हैं. ड्यूरेशन इज इक्वल टू करंट यील्ड RC अपॉन YTM इंटू 1 प्लस YTM into present value factor for annuity at YTM for n years plus 1 minus RC upon YTM. So into its life. So let us say what is our current yield RC. Formula है annual income upon purchase price times 100. So annual income is 160
परचेज प्राइस इज नाउ करंट प्राइस 964.40 into 100. So this is our RC 160 divided by 964.4 into 100. So it is 16.59% or 16.6% rounded figure. So now put the values here. So RC 0.1659, YQM is 17%, and 1 plus YQM 1.17. Annuity factor at YQM 17% for 6 years. This is 3.59. Plus 1 minus RC upon YQM 0.1659 upon 0.17 into life is 6 years. So this we can solve divided by 0.17 into 1.17 times 3.59. So this value is 4.0992 plus 1 minus, so this is 0.1659. So divided by our 0.17 minus 1 into 6. So this is 0.1447. दोनों को प्लस करेंगे प्लस 4.0992. So this is our duration 4.244. So next they are asking what is volatility of this bond. So what is bond's volatility? Which means percentage change in bond value. इसका फार्मूला है ड्यूरेशन, उसको कन्वर्ट कीजिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन में, विच इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM so into change in YTM. So duration is 4.244, YTM 1.17 और कितना चेंज लेंगे हम जब क्वेश्चन साइलेंट है 1%. So it means for every 1% change in YTM, what will be percentage change in bond value, so which is called volatility. So this divided by 1.17. So this is coming to be 3.627%. इट मीन जब 1% चेंज आएगा इंटरेस्ट रेट में तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू में चेंज आएगा 3.627%. And further they are asking calculate एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट. अब आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है. बाकी अब आपको मेंशन किया है यील्ड जो है आपकी इंक्रीज हो रही है. सो व्हाट इज इंक्रीज इन YPM. So that is equal to 75 basis point, which means 0.75%. तो 100 बेसिस पॉइंट्स में होते हैं 1%. तो इट मीन जब YQM इंक्रीज होगी, दिस इज इंक्रीज, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो फॉल करेगी. तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फॉल इन बॉन्ड वैल्यू. यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा वोलेटिलिटी का. फार्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM इनटू करेक्ट हैं चेंज इन YTM. जैसे ये को हमने निकाला है ना कि 1% चेंज के कारण कितना चेंज होगा. अब हमें पूछा है इन्होंने 0.75% इंक्रीज होने से कितना फॉल होगा बॉन्ड की वैल्यू में. तो ड्यूरेशन इज 4.244 1.17 into 0.75. So this into 0.75. So this is 2.72% आपका फॉल हो जाएगा बॉन्ड की वैल्यू में. अब इसके बेस पर आपका आ जाएगा न्यू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड. तो ये आपका फॉल हो रहा है और करंट प्राइस आपको दिया है 964.40. इसमें से माइनस कर दो 2.72% ऑफ दिस प्राइस.
So that will be our new market price 964.4 minus 2.72%. So this is coming to be 938.17. ये आपका नया प्राइस आ जाएगा बॉन्ड का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको मेंशन किया है फाइंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ₹1 लाख रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर। एक आपको बॉन्ड दे रखे हैं, लाइफ है आपकी 6 ईयर एंड जो फेस वैल्यू गिवन है ₹1 लाख एंड मेच्योरिटी विद YTM एट 16% पेबल एनुअली। और जो YTM है आपकी दैट इज 16% एंड ड्यूरेशन आपको दिया है इसमें ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड दिस इज अवर 4.3202 ईयर्स and given it is also given that 1.16 raised to power 6 is equal to 2.4364। उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो उसमें से इंटरेस्ट देखो आपको मिलेगा एनुअली, लाइफ है 6 ईयर, फेस वैल्यू आपको दी है, तो उसका करंट मार्केट प्राइस मिसिंग है P0। तो करंट मार्केट प्राइस होता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लो। अब फ्यूचर के हमें एनुअल कूपन इंटरेस्ट इसमें मेंशन नहीं किया कितना है, इट मीन्स कूपन इंटरेस्ट C इज कूपन रेट, तो दिस इज मिसिंग। अब आपको ड्यूरेशन दिया है, तो अब आप कूपन यील्ड मेथड वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। मतलब फार्मूला ऑफ कूपन यील्ड मेथड ऑफ ड्यूरेशन। तो इसका ये फार्मूला है ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 + YTM आपको दे रखी है अपॉन YTM माइनस 1 + YTM तो प्लस N इंटू कूपन माइनस YTM एंड अपॉन सो कूपन इंटू 1 + YTM तो रेज टू पावर N -1 + YTM। इसमें देखेंगे आपको लाइफ भी दे रखी है, YTM भी है और ड्यूरेशन भी है, तो कूपन इंटरेस्ट है वो मिसिंग, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ड्यूरेशन इज 4.3202 इज इक्वल टू 1 + YTM दिस इज 16%, दिस इज 1.16 प्लस so life is given 6 year into coupon is missing minus YTM, so coupon is missing into 1 + YTM raised to power n है 6, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2.4364 -1 + 0.16। उसको आप सोल्व कीजिए। सो दिस फैक्टर विल गो हेयर 4.3202 minus so 1.16 divided by 0.16, so this is coming to be 7.25 is equal to this is negative, तो इसको मल्टीप्लाई करके हैं एंड ओपन का ब्रैकेट 1.16 प्लस 6C माइनस 0.96 upon this minus 1 into C, so 1.4364 C plus 0.16, so this will subtract, so this one is 7.25 minus 4.3202, so this is also coming negative minus 2.9298 and this is also negative minus so 1.16 minus 0.96 this is 0.2 plus 6C, so this is 1.4364C
प्लस 0.16 तो माइनस दोनों साइड आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, so 2.9298 times 1.4364, so this is coming 4.208364 C, and this into 0.16, so 2.9298 times 0.16, so this is coming over plus 0.468768 is equal to 0.2 प्लस 6C, तो 6 में से इसको करेंगे माइनस एंड दिस विल गो हेयर, तो दिस विल बिकम 0.268768 इज इक्वल टू, यानी कि 6 माइनस 4.2083647, दिस इज 1.7916353C। तो भी मैंने जो लॉन्ग फिगर्स लिए हैं, बाद में इसको राउंड ऑफ कर देंगे फिर हम। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, so 0.268768 divided by, so this value is coming to be 0.15, तो इट मीन्स कूपन रेट आ गया आपका 15%। तो बस यही मेन पॉइंट था, इसमें कूपन रेट आपको कैलकुलेट करने हैं, जिस वक्त रिवर्स क्वेश्चन, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, अब आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, जिसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं P0 से, जिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट YTM। अब देखो YTM दी है आपको, आप टेबल ड्रॉ कीजिए। सो ईयर इज 1 to 6 एंड 6, वो फिर भी कैश इनफ्लो, फेस वैल्यू है आपकी 1 लाख, उसके ऊपर आपको मिलेगा 15% इंटरेस्ट 15,000, और लास्ट में मिलेगी आपको रिडेम्पशन वैल्यू। एंड देन यू अप्लाई PV फैक्टर है, तो YTM है आपकी 16% फॉर 6 ईयर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.16, दिस इज 0.41 and 3.685. So current market price of bond is 15,000 times 3.685 plus 41,000, 96,275. This is your market price. This was also a good question. तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें आपको मेंशन किया गया फॉलोइंग इज ईल्ड स्ट्रक्चर ऑफ AAA रेटेड डिबेंचर। कोई डिबेंचर है, उसके ईल्ड दिए हैं आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स की। तो लेके सी पीरियड आपको दिया है, देखिए जैसे कि 3 months, 6 months, 12 months, and then it is 2 years, then it is 3 years and above। तो उनकी आपको ईल्ड दे रखी है डिफरेंट टाइम पीरियड्स की। 8.5%, तो ईल्ड हमेशा परसेंटेज में होती है, पर एनम है ये, यानी कि 9.25, 10.5%, 11.25 एंड 12%। तो इतनी जो जिसे जो ईल्ड मीन्स YTM है डिफरेंट टाइम पीरियड्स की, जिसको हम सपोर्ट ईल्ड भी कहते हैं, जिसे आंसू कहा गया सपोर्ट ईल्ड। So they are asking based on expectation theory calculate the implicit 3 month and 6 month forward return in year 1। तो पहले साल में आपको ये ईयर 1 बन रहा है आपका, जिससे कि टाइम पीरियड को 1 ईयर। तो उसमें आपको फॉरवर्ड ईल्ड कैलकुलेट करनी है 3 महीने की विच इज दिस वन, और 6 मंथ्स की। तो लेकर से फर्स्ट पार्ट फॉरवर्ड ईल्ड,
नंबर 1 इज फॉर 3 मंथ्स। तो इट मीन्स ये अब आपको टाइम पीरियड है 0, तो 0 से 3 की है और 0 से 6 मंथ्स की रिटर्न है आपके पास। आपका फार्मूला बन जाएगा तो 1 प्लस आर, लेट अस राइट 0 to 3 मंथ्स, इंटू कर लीजिए 1 प्लस आर 3 to 6 मंथ्स, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस आर 0 to 6 मंथ्स। तो पहले लिए आपने 3 मंथ्स की रिटर्न, उसमें 3 मंथ्स की और ऐड कर दिया आपने, टोटल बननी चाहिए 6 मंथ्स की, पर अब ये पर एनम है तो इनको बना लेते हैं 3 मंथ्स का। तो जिसमें लिखता हूँ 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाई 4, और ये मिसिंग है आपकी 1 प्लस आर 36, और इसको बना लीजिए 6 मंथ्स के लिए। अब 6 मंथ्स की है 9.25, 1 प्लस 0.0925, तो इनको किया हमने 6/12, ये बन जाएगा हाफ, और इसको किया हमने 3/12, तो इससे 1 प्लस आर 36 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको सोल्व कीजिए। सो जिसे 0.0925 डिवाइडेड बाई 2, this is coming 1.04625, and this will go on other side 0.085 divided by 4, which is 1.02125. So 1.04625 divided by 1.02125. This value is 1.02448। इससे आपकी आर आ जाएगी 3 to 6 मंथ्स की, ये आ रही है 3 महीने की आएगी। इसको आंसर हम देखें पर एनम में, तो जिस -1 किया आपने, जिसे जो 2.448 इंटू कर लीजिए 12/3, तो पर एनम आंसर बन रहा है आपका 9.79%, 9.792%। This is forward return. So similarly, let us see for forward return for 6 months. इसमें आपके पास देखो 6 महीने की है, 12 महीने की रिटर्न है। तो लेट अस राइट 0 to 6, एंड ये 6 to 12 आपकी मिसिंग है, जिसे 6 to 12, और ये है आपकी 0 to 12 मंथ्स। तो 6 मंथ्स की है 9.25, सो 1 प्लस 0.0925, इसको बना लीजिए 6 मंथ्स के लिए, एंड 1 प्लस आर 6 to 12 मंथ्स, जिसे मिसिंग, और 12 महीने की है 10.5%, 1.105, ये पहले ही पूरे 12 महीने की है, 1 साल की। तो इससे 1 प्लस आर आपकी आ जाएगी कैलकुलेट फॉर 6 to 12 मंथ्स। तो 1.105 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 0.0925 डिवाइडेड बाई 2, तो जिसे 1.04625, so 1.105 divided by 1.04625, so this is 1.056153, let us write 2, उससे आर आ जाएगा आपका 6 to 12 मंथ्स, तो ये आएगा आपका 6 महीने का, जिसे जो 5.62%। तो इसको बना लीजिए पर एनम 12/6, so 5.62 into 2, this is 11.24%. This is forward return from 6 to 12 months. So second they are asking, also determine the implicit 1 year forward rates in year 2 and 3. तो ईयर 2 में भी आपको कैलकुलेट करनी है फॉरवर्ड रिटर्न, और ईयर 3 में भी कैलकुलेट करनी है फॉरवर्ड रिटर्न। तो सेकंड की देयर आस्किंग अगेन व्हाट इज फॉरवर्ड ईयर। तो पहले देखते हैं ईयर 2 में, फॉर 1 ईयर के लिए ईयर 2, तो आपको लेनी है 1 साल की रिटर्न है 1 प्लस आर 0 to 1, उसमें आप ऐड कीजिए 1 प्लस आर
1 to 2 that is equal to 1 plus r 0 to 2 for 2 years. So 1 year की रिटर्न है 10.5, so 1.105 इंटू 1 प्लस आर 1 to 2 ये मिसिंग है आपकी, 0 to 2 है आपकी 11.25 1125 रेज टू पावर 2, तो इससे आर 1 2 आ जाएगा, इसका कीजिए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस -1, तो किसी 1.1125 इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.105 -1, जिसे कमिंग 12.01%. तो नेक्स्ट टू कैलकुलेट इन ईयर 3 बुटी 4 रिटर्न, इसमें अब आपके पास 2 सालों की रिटर्न है, तो यू टेक 1 प्लस आर 0 to 2 फॉर 2 ईयर्स, उसमें ऐड कर रखे हैं 1 प्लस आर 2 to 3 ईयर, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस रिटर्न फॉर 3 ईयर्स रेज टू पावर 3, तो इससे आर 23 कैलकुलेट हो जाएगी। 3 सालों की जो रिटर्न है 12%, सो 1.12 डिवाइड हो जाएगी, 2 साल की रिटर्न है 11.25 1.1125 रेज टू पावर 2 -1 करके आपका आंसर आ जाएगा R223, तो 1.12 इट्स क्यूब, so divided by 1.1125, so -1, so this is coming 13.52%. This is forward yield. The next third part उन्होंने और पूछा है इसमें, so if the interest rate increases by 50 basis points, what will be percentage change in price of bond having a maturity of 5 years? तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज कितना आएगा प्राइस ऑफ बॉन्ड में। तो क्या रास्टिंग देखिए इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स YPM इंक्रीज हो रही है आपकी 50 बेसिस पॉइंट में 0.5%, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड की वोलेटिलिटी थ्रू ड्यूरेशन, तो पहले कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन, एंड जिसे जो मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर 5 साल का बॉन्ड है आपका, इट मीन्स अब आपको एक बॉन्ड दे रखा है लाइफ इज 5 ईयर, तो देखो 5 साल की जो YPM है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, YPM है आपकी 12%, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द बॉन्ड इज फेयरली प्राइस्ड एट द मोमेंट एट ₹1000, तो आज तो उसकी फेस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू परचेज प्राइस इज इक्वल टू 1000, रिडेम्पशन भी मेंशन नहीं की, तो रिडेम्पशन भी सेम है, कुछ मीन 5 साल की जो ईल्ड है ये है 12%, तो यही आपकी कूपन ईल्ड बन जाएगी, C इज ऑल्सो इक्वल टू 12%। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरेशन, कुछ मीन जब फेस वैल्यू परचेज प्राइस एंड रिडेम्पशन ऑल ऑफ देम आर इक्वल, यानी कूपन YPM एंड करंट ईल्ड तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो फार्मूला अप्लाई किया ड्यूरेशन का, करंट ईल्ड मेथड अप्लाई करके हैं RC अपॉन YPM इनटू 1 प्लस YPM इनटू प्राइसिंग टू वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट YPM फॉर 5 years प्लस 1 माइनस RC अपॉन YPM इनटू लाइफ, तो RC अपॉन YPM सेम है, तो ये 1 बन जाएगा, दिस विल बिकम 0, तो किसी 1, तो फार्मूला रहेगा 1 प्लस YPM 1.12 इनटू प्राइसिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर है तो YPM 12% फॉर 5 year 3.605, so this will be our duration, so 3.605 into 1.12 4.0376। अब कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड की वोलेटिलिटी व्हेन वेरी चेंज इन YPM बाय 0.5%, अभी देखो YPM इंक्रीज हो रहा है, so this will be our bonds volatility, इट मीन जब YPM इंक्रीज होगा दिस विल बी परसेंटेज फॉल इन वैल्यू, फार्मूला इसका ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YPM
इनटू चेंज इन YTM. This is called the modified duration. So duration is 4.0376 डिवाइडेड बाय YTM है आपके पास है कि 5 ईयर की 12%, इनको चेंज इन YTM है आपका 0.5. So this will be our percentage change in bond value which is to fall. So divided by 1.12 into 0.5. So 1.803%. तो इतना आपकी बॉन्ड की वैल्यू में फॉल हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 4. नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 4. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एक्सेल स्पार्क लिमिटेड हैड मेड एन इशू ऑफ 40% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन 1 जनवरी and these debentures have face value ₹100 and is currently traded in the market at a price of ₹90. It means today is zero time period. This is January 1. This is zero time period. So company has issued 14% non-convertible debenture. And this is of ₹100 each. And they are currently traded in the market at a price of ₹90. उनका करंट प्राइस आपको दिया है दिस इज ₹90. फेस वैल्यू इज ₹100. And interest on these debentures will be paid through post dated checks dated June 30 and December 31. तो कंपनी पहले ही आपको चेक्स इशू कर देगी पर आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा 30 जून और 31 दिसंबर को. इट मीन्स इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली. And bond is redeemable at par on 31 December at the end of 5 years. तो लाइफ आपको दी है 5 years और ये रिडीम होगा पार के ऊपर. तो इंटरेस्ट इसमें हाफ ईयरली है. सो दे आर आस्किंग कैलकुलेट करंट यील्ड एंड YTM ऑफ द बॉन्ड. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज करंट यील्ड. तो जिसको हम शो कर सकते हैं CR से या कई बार हम शो करते हैं RC करंट रिटर्न या यील्ड. फॉर्मूला सिंपल है इसमें एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस इन 200. इसमें हम पूरे साल की इनकम कंसीडर करते हैं. एनुअल इनकम है आपकी 14%, प्राइस इज 90 टाइम्स 100. सो दिस यील्ड इज कमिंग 15.56%. So then we have to calculate YTM. तो इसमें इंटरेस्ट देखो आपको मिल रहा है हाफ ईयरली. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे YTM फॉर 6 मंथ्स. तो इसके लिए आप टेबल ड्रॉ कीजिए. तो अब अपने पीरियड से शो करने हैं 6 मंथ्स के. तो पीरियड्स ऑफ 6 मंथ. तो 5 ईयर्स हैं. 5 ईयर में 6 मंथ से पीरियड हो जाएंगे 10. So we can show 1 to 10 period and 10. What is the cash inflow in rupees? तो फ्यूचर में आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा 14% ऑन 100. 14 रुपये हाफ ईयरली बन जाएगा 7 और लास्ट में मिलेगी आपको रिडेम्पशन वैल्यू. तो प्राइस है आपका 90. तो इट मीन्स जिसे ये लोअर देन 100 तो आपकी जो रिटर्न है वो ज़्यादा होनी चाहिए कूपन रेट से. सो लेट अस ट्राई PV फैक्टर है तो 8%. ऊपर रेट देखो बन रहा है हमारा 6 महीने का 7%. तो उससे हाई रेट पर हम डिस्काउंट कर रहे हैं. तो 8% पर आप कैलकुलेट कीजिए फॉर 10 पीरियड PV फैक्टर. तो सिंगल फैक्टर की 0.463 और NP बन जाएगी 10 पीरियड से 6.71. तो 6.71 इंटू 7 तो प्लस 46.3 जिसे 93.27. तो ये आप देखेंगे हायर है स्टिल मोर देन 90 है. तो और रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज करके हैं PV फैक्टर को. लेट अस ट्राई 9% फॉर 10 पीरियड्स. तो जिस सिंगल फैक्टर 0.422
and NDP factor is 6.418 into 7, so plus 42.20. So total value is coming 87.126. अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में, so you will get YTM. So what is your YTM? तो पहले जो आंसर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 6 मंथ्स का. फॉर्मूला है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, प्राइजिंग वैल्यू एट लो रेट 93.27 माइनस इक्वल करना है अपने P0 90 के, नीचे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा माइनस 93.27, 6.144, डिफरेंस है आपका 1%. So it is 3.27, so divided by 6.144, so this is 8.53. बट ये जो YTM है ये हमारी 6 मंथ्स की आ रही है, इसको बनाएंगे हम पर एनम. क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली, उसको हम कंपाउंड करते हैं, तो फार्मूला बनाता है 1 + R 1.0853 और इसकी कंपाउंडिंग कर लीजिए 2 टाइम्स -1. सो दिस विल बी अवर 1.0853 x स्क्वायर -1. So answer is 17.79%. This is your YTM per annum. तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. आपके पास RC आ गई है, YTM है, अब हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ड्यूरेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो करंट यील्ड मेथड. So as per this method, duration is equal to current yield RC upon YTM into 1 plus YTM. So into present value factor for annuity at YTM for n years plus 1 minus RC upon YTM into n. And this is our RC. तो इसको पुट करके हैं RC ये 15.56.1556, YTM is 17.79.1779 into 1.1779. इसका आ जाएगा NP फैक्टर, so 1 divided by 1.1779 for our 5 years. This factor is 3.142 plus 1 minus RC upon YTM 0.1556.1779 into life is 5 years. So 0.1556 divided by 0.1779. So this is 0.875. So into 1.1779 into 3.142 plus 1 minus 0.875 into 5. So 0.875 into 1.1779 into 3.142. So 0.875 times 1.1779 times 3.142. So this value is coming 3.238 and 1 minus कर दीजिए, जिसे जो 0.125 into 5 0.625. So plus 3.238 which is 3.8663. So this is your duration in years. So next they are asking you
Assuming that intermediate coupon payments are not available for reinvestment. इसी क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट है हमारा कि जो कूपन पेमेंट्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट रियलाइज्ड यील्ड ऑन एनसीडी। अब आपको इसकी रियलाइज्ड यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इन थर्ड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट रियलाइज्ड यील्ड। ये कब अप्लाई होता है? जब हम कूपन इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट रेट के ऊपर। तो इस केस में आपको मेंशन किया है कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट है आपका, री इन्वेस्टमेंट रेट, so this is given to be 0% because जो कूपन्स आर नोट री इन्वेस्टेड, उसको हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वी विल टेक पीरियड्स। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली, सो पीरियड ऑफ 6 मंथ, यू कैन शो 1 2 3 अप टू 10। तो बच्चे जो कैश इनफ्लो एवरी पीरियड, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7 रुपीज एंड लास्ट में मिलेगा रिडेम्पशन 107, रिडेम्पशन प्लस इंटरेस्ट। अब इसको आपने देखो री इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करेंगे हम 0% पे, इनको कर लीजिए 1 + 0%। अब जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट पीरियड में, उसके रिमेनिंग पीरियड्स रहेंगे 9, तो ये री इन्वेस्ट होगा 9 पीरियड्स के लिए। सेकंड में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 1 + 0 फॉर 8 पीरियड्स। थर्ड इज री इन्वेस्टेड फॉर 7 पीरियड। तो इस तरीके से री इन्वेस्टमेंट के पीरियड हमारे कम होते जाएंगे, लास्ट में ये री इन्वेस्ट होगा फॉर 0 पीरियड। तो इसमें इस तरीके से आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 10 पीरियड। पर आप देखेंगे सभी में 1 + 0 1 बन जाएगा, उसकी पावर कुछ भी कर लीजिए 1 ही रहेगा, इसमें सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी 7 7 7 107। उसका देख लीजिए आप टोटल फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच आफ्टर 10 पीरियड। तो 7 का इंटरेस्ट मिला आपको 10 टाइम्स 70 रुपीज प्लस 100 रुपीज रिडेम्पशन के, टोटल है 170। अब आपकी ने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 170। प्रेजेंट वैल्यू है एट 1 + YTM। कितने पीरियड्स हैं आपके 10 फॉर 10 पीरियड, सो दैट इट इज इक्वल टू परचेज प्राइस विच इज 90। तो उसको सोल्व करके आपकी YTM आ जाएगी जिसका नाम है रियलाइज्ड YTM। तो ये YTM आएगी आपकी अभी 6 महीने की। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 + YTM फॉर 10 पीरियड इज इक्वल टू 170/90। तो इसको डिवाइड कर देते हैं किसी 1.89। तो लेट अस ट्राई, हिटिंग ट्राई। तो 7% कूपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो आपको कूपन रेट से भी कर सकते हैं, बट परचेज प्राइस 90 है, तो इट मीन्स इन रिटर्न इज हायर, सो लेट YTM इज अवर 8%। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? तो उसमें पुट करते हैं 1 + 8% 1.08 फॉर 10 पीरियड्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1.08 फॉर 10 पीरियड्स, जिसे 2.159। तो हमें चाहिए 1.89। तो लेट अस ट्राई 7%। 1.07 रेज़ टू पावर 10, इसे 1.967। तो स्टिल इट इज हायर 1.967, तो वी वांट 1.89। तो लेट अस ट्राई 6%। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1.06 रेज़ टू पावर 10। तो 1.06 जिसे 1.2791। So we require 1.89. Now we can interpolate in between these two values. So what will be our YTM? ये आपकी 6 मंथ्स की आ रही है, 1 पीरियड के लिए। लो रेट है 6% प्लस वैल्यू इज 1.79, वी रिक्वायर 1.89। नीचे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 1.79 - 1.967
इनको डिफरेंस है रेट में आपका 1%, क्योंकि 6 प्लस 1.79 माइनस दिस माइनस 0.10 अपॉन, so this is also negative, so 1.79 minus 1.967, this is your minus 0.177, माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.177, सो गेट आंसर इज 6.565%, बट दिस फॉर 6 मंथ। अब इसको भी बना लीजिए पर एनम, तो बट लीजिए YTM पर एनम, तो जिसे कहा गया रियलाइज्ड YTM, जब आपका कूपन री इन्वेस्ट हो रहा है डिफरेंट रेट के ऊपर, तो जिस पर एनम बन जाएगा, ये हाफ ईयर है 1.06565 रेज टू पावर 2 माइनस 1, so 1.06565 its square minus 1, 13.56%, so this is our realized YTM. तो नेक्स्ट लेके से प्रोविजन नंबर 5, तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंसीडर ए बॉन्ड सेलिंग एट पार वैल्यू ऑफ ₹1000 विद 6 ईयर को मेच्योरिटी एंड 7% कूपन रेट विद एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक आपको बॉन्ड दिया है प्राइसिंग के लिए, जिसे 7% बॉन्ड ऑफ ₹1000, 0 टाइम पीरियड, and it is selling at par value, so purchase price is also this T0, so maturity is 6 year, life आपको दी है 6 year, so what is the bond duration, तो सेल पार के ऊपर हो रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू जो है that is also same, it means when face value, redemption value, purchase price all of them are same, then coupon yield is equal to current yield is equal to YTM, तो तीनों ये भी सेम हो जाएंगे। आप ड्यूरेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, को करंट की मैक्सिड अप्लाई कर रखे हैं, फार्मूला है आपका RC अपॉन YTM इनको 1 प्लस YTM इनको प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर NET एट YTM फॉर N ईयर्स प्लस 1 माइनस RC अपॉन YTM इनको लाइफ ऑफ बॉन्ड। तो आप देखेंगे RC एंड YTM दोनों सेम है, 7% कूपन जो बॉन्ड है आपका 7/7.07 ये 1 बन जाएगा इनको 1.07, ये आपको चाहिए एनुअल फैक्टर 7% फॉर 6 ईयर, so let us calculate annuity factor 1 divided by 1.07 for 6 period, so this one is coming 4.76654 प्लस 1 माइनस ये 1 ही बन जाएगा, लाइफ इज 6 है, इट मीन दिस इज 0, so we are left with this into 1.07, so duration is coming 5.1 year, ये आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग इफ YTM ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेज टू 10% हाउ इट अफेक्ट्स द बॉन्ड ड्यूरेशन। अब YTM आपकी चेंज हो गई है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, कुछ में सेकंड केस में अब आपका जो कूपन है ये तो 7% है, बट YTM हैज बिकम 10%, तो YTM के चेंज होने से करंट पीरियड भी चेंज हो जाएगी, इट मीन्स और प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, कूपन मेथड, कूपन मेथड, so as per this method the duration of a bond is 1 plus YTM upon YTM minus 1 plus YTM, so plus N into coupon minus YTM, this upon, so this is your coupon into 1 plus YTM raised to power N minus 1
प्लस वाई क्लेम। अब आप कूपन यील्ड का मेथड अप्लाई कर लीजिए टू कैलकुलेट ड्यूरेशन। कूपन भी है आपके पास और वाई क्लेम भी है। तो नाउ व्हाट विल बी ड्यूरेशन? वाई क्लेम हैज बिकम 10%, सो 1.1 अपॉन 0.1 माइनस 1 प्लस वाई क्लेम 10% एंड प्लस n। तो लाइफ आपको दे रखी है क्वेश्चन में किसी फॉर 6 ईयर, सो इनटू कूपन इज 0.07 माइनस 0.10 अपॉन कूपन 0.07 इंटू 1 प्लस वाई क्लेम रेज टू पावर 6 माइनस 1 प्लस वाई क्लेम। तो किसी कमिंग 11 माइनस 1.1 प्लस, तो आप पहले इंटरनल ब्रैकेट सोल्व कीजिए। तो किसी जो माइनस 0.03 इंटू 6, किसी माइनस 0.18 अपॉन इस इनर ब्रैकेट को सोल्व करके 1.1 रेज टू पावर 6, so -1, so into 0.07 and plus 0.1, तो किस वैल्यू जो 0.154, तो 1.1 माइनस कीजिए 0.18, तो दिस विल बी 11 माइनस 0.92 अपॉन 0.154, तो इससे आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। तो जिसे जो 0.92 divided by 0.154, so 5.974, so minus 11, so now duration will become 5.03 years। पहले आपका आ रहा था 5.1 ईयर, नाउ इट इज 5.0 ईयर, स्लाइटली हमारा ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा। And third point they are asking, why should the duration of a coupon carrying bond always be less than time to its maturity? ये प्रैक्टिकल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस टाइप का क्वेश्चन। इन थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग यू, सो व्हाई ड्यूरेशन इज लेस देन मैच्योरिटी। उसका आंसर क्या था हमारा कि मैच्योरिटी में हम रिकवर करते हैं टोटल कैश इनफ्लो, और ड्यूरेशन में आपको रिकवर करना है एवरेज कैश इनफ्लो। तो एवरेज हो क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय लाइफ, इट मीन एवरेज इज ऑलवेज लेस देन टोटल कैश इनफ्लो, so therefore duration is less than maturity। और इसकी एक एक्सेप्शन थी इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और गिव डिस्काउंट बॉन्ड, जिसमें कोई आपकी एनुअल इनकम नहीं है, तो इन दैट केस ड्यूरेशन इज इक्वल टू मेच्योरिटी। ये इसकी एक्सेप्शन है। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।